So hello everybody. Today we are going to see the overview of pointers with reference to arrays and with reference to strings. So very simple. You know that, like suppose you want to create a pointer. So first let's see what is the simple definition of a pointer. Pointer is a variable which contains the address of another variable. Pointer is a variable, okay, is a variable which contains the address of another variable like this. So first we have to declare this a. So this is integer a comma star p. So here we will have these two statements. Okay, so this is the variable a. Now you have created this variable p as a pointer variable, but you cannot call this p as a pointer variable until you are going to write such kind of a statement, or you can't do such kind of a assignment. Means once you do not assign the address of the variable to that variable p until and up till, you cannot call this p as a pointer variable. अगर आपने ये पहली line लिख दी and you are saying that this p is a pointer variable, so that is going to nullify your statement. वो statement आपका क्या हो जाएगा, nullify हो जाएगा. That don't have a meaning until and up till you do not write such kind of a statement. Only that time, अगर आपने ये statement लिखा, only that time you can say that this p is a pointer variable. So very simple definition of a pointer variable: the variable which contains the address of another variable. Variable which contains the address of another variable. That variable is called as a pointer variable. Now this is the pointer for the integer variable. In the same way, you can create a pointer for the character variable or for any another, whatever you want. In the same way, no changes there. So this is again star p, then char p is equals to ampersand p. ये आपका character हो गया. In the same way, you can create a pointer for integer array, that is a of 10. Then you can write here star p, okay, and then you can write p is equals to, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर में लिख दिया, p is equals to ampersand a of 0. That is the bus address, the address of first element you are passing to the pointer variable. अब यहाँ पे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, because we already declared it. ओके, पी हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है. पी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसलिए कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है. पी यहाँ पे कुछ ले लिया, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आप अलग अलग भी ले सकते हो, पी ए ले लिया, पी सी ले लिया, यहाँ पे कुछ तो पी भी ले लिया, वॉट एवर यू वॉन्ट. इन द सेम वे यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर फॉर द कैरेक्टर एरे. सो कैरेक्टर कुछ तो भी ले लो, एस ऑफ 10, ओके, कॉमा स्टार पी एस, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाके पी एस इज इक्वल टू एम्परसैंड, एम्परसैंड क्या लिखूंगा मैं, एस ऑफ 0. So this is all going to represent your pointer creation and pointer declaration and definition. तो आपने यहाँ पे pointer create किया, declare किया, यहाँ पे आपने pointer को define किया. So all these are the declaration and definition of the pointers variables for the different aspects. Here we are creating pointer for integer variable, character variable, integer array, character array. In the same way, you can create a pointer for the structure again. Okay, so suppose our sample is a class, so sample का object है s, तो यहाँ पे आपने pointer बनाया कुछ तो भी star p. Okay, so here you can write down p is equals to ampersand s. ये हो गया आपका object का pointer. So this is going to represent your object pointer. In the same way, suppose you will have a struct student. So this is struct student, and now for student we are creating a pointer. So that is star ps or sp, whatever you want, and then ps is equals to ampersand, यहाँ पे बनाने करेगा, यहाँ पे
S1, ampersand S1. Okay. So these are the different ways to create a pointer. And once you are ready, or once you are in a position to create the pointer, you will simply use it. तो यहाँ पे देखो इंटीजर a आया, स्टार p आया, and p is equals to ampersand a. Now here I will write that is star pa is representing the value. Okay, means अगर a का वैल्यू 5 होगा, then star p is equals to 5. Okay, but p represents the address. p क्या कर रहा है? एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं थोड़ा सा इसमें लाइन डाल देता हूँ. p represents the address. Suppose the value of p is now, अज्यूम करते हैं 1000 है करके, assumed. Okay, so when you make p plus plus, so p, the current value or variable p or pointer p is pointing to location 1002. Why is it so? Because p is integer pointer and size of integer pointer is of 2 bytes. ओके, अगर आपने यहाँ पे फिर से p प्लस कर दिया तो अभी कितना हो जाएगा? ये p प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे भी आपने p प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो रहा था? 1002 हो रहा था. नाउ इट पॉइंट्स एट लोकेशन 1004. Okay, but suppose you are doing like this one, star p plus plus, so it represents your value 6. That is, star p means 5 plus plus, that is 6. So very simple. ध्यान में आ गया होगा आपके. ध्यान में आ गया होगा आपके. अब जैसा ये कंसेप्ट है, द सेम कंसेप्ट यू कैन यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉइंटर्स. यू कैन यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉइंटर्स. फिर वो कोई भी पॉइंटर रहे, इंटीजर रहे, कैरेक्टर एरे रहे, इंटीजर एरे रहे, स्ट्रक्चर रहे, या फिर आपका क्लास रहा, कोई भी पॉइंटर रहा आप जिसके लिए भी बना रहे हो, फॉर द सेम. लेकिन कीप इन माइंड, like this class and structures are the different because these are the user defined data types. Yes क्या है हमारा? user defined है. S1 क्या है हमारा? user defined है. So S के अंदर बहुत सारा डेटा रह सकता है, S1 के अंदर भी बहुत सारे डेटा मेंबर्स या फिर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स रह सकते हैं, S के अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स रह सकते हैं. ओके ओके, तो उनको इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हम लोग. एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उनको इंक्रीमेंट या ये नहीं कर सकते जैसे इनको कर रहे हैं हम लोग. इंटीजर्स को, भले ही इंटीजर कैरेक्टर को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो लेकिन उसको नहीं कर सकते. ओके, so this is about the integer array. Once again I am repeating, like this is your normal variable. Now you created a pointer variable pa. Now this pa is called as a pointer variable only when you are going to assign the address to the variable p. Only that time this p is called as a pointer variable. Okay, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा. पहले ये तो हो गया डिक्लेरेशन, फिर ये भी हो गया असाइनमेंट. So this star pa is representing the value, means a equals to 5, then star p is equals to 5. But p represents the address. p क्या represent कर रहा है? Address represent कर रहा है. Only p. Star p is representing value. p is representing the address. p is representing the address. Okay. So here
We have considered the address of P as a 1000. Okay, now when you make P plus plus, I am not talking about star P plus plus, I am talking about only P plus plus. So P is going to represent the address and the type of P is integer. So whenever you are going to increment P, it will be incremented by 2 bytes. It will be incremented by 2 bytes. So current value or pointer P is pointing to location 1002 because P is an integer pointer and size of integer pointer is of 2 bytes. सो P प्लस प्लस यहाँ पे आपने किया तो 1002 पे गया, यहाँ पे आपने P प्लस प्लस किया तो कहाँ पे गया आपका 1004 पे गया. ओके, सो स्टार अब ये P प्लस प्लस का हो गया. स्टार P प्लस प्लस मीन्स आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बिकॉज स्टार P इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 5u. सो 5u plus plus means that is going to be a 6. So here star P plus plus means your value is incremented. So 5 plus plus that is become 6. So very simple concept of a pointer. Only you know कि like star P is going to represent the value and P is going to represent the address. और जैसे जैसे अभी कैसा है कि अभी हमारा सपोज कंसिडर करते हैं ये मैंने यहाँ पे लाइन मार ली या फिर ये यहाँ पे मैं कुछ तो भी नंबर लिख देता हूँ वैल्यू 1 2 थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ आपको समझ में आएगा या फिर टैब डाल देता हूँ. वेरी सिंपल. ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया. ओके, और इसके नीचे लिखता हूँ. So here we are having a numbers 1 2 3 4 5 and 6. So 1 is representing 1000 address. So suppose currently you are pointing over here. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ये स्टार P रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, P वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. P वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये. तो ये P क्या कर रहा है, एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टार P वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप स्टार P प्लस प्लस करते जाओगे तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, C प्लस C 6 हो जाएगी. और वही अगर आप इसको करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1002 हो जाएगा बिकॉज एज इट इज इंटीजर इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 बाइट्स. तो ये 1004 हो जाएगा, ये 1006 हो जाएगा, ये 1008 हो जाएगा और ये 1010 हो जाएगा. मीन्स सपोज अभी अगर आपके पास एरे होगा या फिर कोई भी नंबर होगा, नो प्रॉब्लम. अगर आप स्टार P प्लस प्लस करते जाते हो तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की वैल्यू सपोज आपकी स्टार P की वैल्यू कौन सी है 1 है. यहाँ पे जैसे हमने 5 कंसिडर की थी तो 1 होगी, तो आपका 1 की वैल्यू स्टार P प्लस करोगे तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4, इट विल गो ऑन. बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ऐसा नहीं कि आप यहीं पे बैठ गए स्टार P की वैल्यू और आप P प्लस 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 नहीं कर रहे हो, क्योंकि P प्लस प्लस मीन्स you are pointing to the next location or you are going to the next location. So suppose you want to go to the next location, so for that you can do P plus plus, and suppose you want to increment the value, so you can do star P plus plus. Okay, आप स्टार P को भी ऐसे अंदर ले सकते हो सपोज यू वांट, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ओके, तो दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट रिगार्डिंग द पॉइंटर्स. इन द सेम वे यू जस्ट सी इट एंड टेल मी यहाँ पे क्या हो सकता है करके. Okay, so this is only about the C. Then we are having a different section. So this is about the character array. This is about the integer array. And this is about the character array. Okay, sorry, character array. That is going to represent you a string. So here again, what happened? Suppose you are going to increment star PB or not star BB. Usually what we will do, because our all the numbers are present with the integer array, like suppose you are having an array A here. So here you are having a number like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so these are the your numbers, that is A of I suppose. In the same way, suppose you are going to increment PB plus plus. What happened? Suppose your first location is, address location is 100
द नेक्स्ट लोकेशन इज गोइंग टू बी, सपोज आप पीबी प्लस प्लस करते जाते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका 102, ये क्या बन जाएगा 104, ये क्या बन जाएगा 106, ये क्या बन जाएगा 108, ये बन जाएगा आपका 110, ये आपका 112, ये आपका 116, ये आपका 118 एंड ये आपका 120. So what I want to say simply, whenever you want to increment the pointer, जैसे अभी आपके तो numbers है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and you have to deal with respect to pointers. तो जब हम इसके साथ डील करते हैं इंटीजर एरे के साथ with respect to pointers, तो हमको ए को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर स्टार पीबी को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, ये वाला एलिमेंट तो हम निकालेंगे, लेकिन निकाल लेंगे तो चलो 1 तो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑफ आई, लेकिन आपको नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो दो चीजें है कि भाई आपको ये लूप चलाना है, तो ये कहाँ तक चलाना है, तो आप इसको चलाओगे 10 तक, तो आपका तो फॉर का लूप लग जाएगा वहां पे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, लेकिन आपको नेक्स्ट लोकेशन पे भी तो जाना है ना विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो वो कैसे जाओगे आप? सो फॉर दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू इंटीजर एरे. तो ये पीबी प्लस प्लस, अगर आपका पीबी पहले कौन से लोकेशन पे होगा 100 पे होगा, फिर आप पीबी प्लस प्लस करोगे तो आपका पॉइंटर 102 पे जाएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू एट 102? द वैल्यू एट 102 इज 2. फिर आपका पीबी प्लस प्लस होगा तो आपका आ जाएगा 104, तो व्हाट इज द वैल्यू एट 104? द वैल्यू एट 104 इज 3. फिर आप पीबी प्लस प्लस करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू एट 106? 4. और वॉट एवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, नाउ दैट ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म with respect to the values that you are going to extract it from the address. माना पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रेफरिंग टू द मेमोरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेमोरी को रेफर कर रहे हैं और मेमोरी में से वैल्यू उठा के फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए वहां पे डाल रहे हैं. इन द सेम वे, जस्ट लाइक इंटीजर एरे यू विल हैव अ कैरेक्टर एरे, इन द सेम वे you will have this object pointer and this is structure. तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ हमको ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, दिस इज pointer to object, this is pointer to character array and this is your pointer to integer array. Okay, and this is your simple pointer to character, single character. Okay, and this is the pointer for the integer. तो यहाँ से जो आप देखोगे, so same thing is implemented for single characters, pointer to array, pointer to character array, pointer to object, and सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टार पी को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, स्टार पीएस को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते. ओके, यू कैन इंक्रीमेंट पी, यू कैन इंक्रीमेंट पीएस. So let's say one example. With the help of that example, it will be very easy to you. So hash include IOStream, ये हो गया class sample. Now here I have implemented this program using the class and object. Now it's depend on you whether you want to implement using a class object or you want to do it simply. Both the cases are available here. Suppose you want to see it simply, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है. That is very easier. तो वहीं पे करते हैं डायरेक्टली. So hash include IOStream, और ये तो बहुत बार किए हमने, सी में भी किया है, यहाँ पे भी किया है. So no botheration about it. Integer main, बाहर आ गए, आपने इंटीजर एरे ले लिया 10 का, या फिर आपको अगर नॉर्मल भी करना है तो नॉर्मल भी कर सकते हो. नॉर्मल भी जब हमने सीपीपी में भी जब हमने पॉइंटर पढ़ा तो पहले एक सादा प्रोग्राम ही मैंने आपको करके बताया था. Then p is equals to एड्रेस ऑफ 0. अब इसके भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं. कोई p इक्वल्स टू a लिखता है, कोई p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड a ऑफ 0 लिखता है, कोई p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड a खाली ब्रैकेट रखता है.
सो कहीं पे भी जाओगे तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज basically you are going to locate the first element of the array, and then here cout enter the elements for the array. then अब मैं उधर से कॉपी करता हूँ, इतना सारा लिखते नहीं बैठता, इट विल टेक अ टाइम। तो यहाँ पे देखो cout, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ तक। देखो मैंने क्या किया, cout enter the 10 values for the array, फिर for i equals to 0, i less than 10, i plus plus, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, I have read the values for the array, फिर मैंने क्या लिखा, sum equals to 0 लिखा, फिर ये इंटीजर स्टार p हमने ऊपर ही बना लिया, तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, p is equals to ampersand e of 0 ये भी ऊपर लिख लिया, तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम वहां पे लिखा था वो हमने फंक्शन के थ्रू बनाया था। सो वॉट एवर द डेटा that is available over here, that complete will go to the function definition. Okay, फिर हमने क्या किया, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि हमें सम करना है। एक्चुअली दिस इज द प्रोग्राम दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, टू फाइंड द सम ऑफ all the elements that are available in the array using the pointer. तो फिर सम इक्वल्स टू 0 किया फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें लूप तो चलाना पड़ेगा, कितने बार चलाना है, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो 10 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि 10 बार सम करना है, तो सम की वैल्यू पहले हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, अदरवाइज सम की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे गार्बेज रहेगी, इसलिए सम की वैल्यू सबसे पहले क्या 0 प्लस स्टार पी। अब स्टार पी मीन्स योर फर्स्ट एलिमेंट, स्टार पी मीन्स योर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे जैसे आपने दे दिया कि पहला एलिमेंट, क्योंकि पी अभी कहाँ पे है, जैसे कि मैंने बोला था पी अभी कहाँ पे है 100 पे है, तो 100 पे कौन सी वैल्यू है 1 है, तो ये वाला यहाँ पे क्या करेगा, पहली वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट 0 प्लस 1 हो गया, सम की वैल्यू 0 और स्टार पी की वैल्यू कितनी करंटली 1 है। फिर आपने p प्लस प्लस किया, माना जो कौन से लोकेशन पे था, जो 100 पे था, नाउ इट इज 102, तो 102 पे आया, तो फिर आप यहाँ से घूम के यहाँ पे कंडीशन चेक किया, तो यहाँ पे कितना वैल्यू बना आपका 1 बना, फिर 1 प्लस, तो 102 पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो 102 पे कौन सी वैल्यू है 2 वैल्यू है, माना ये pb प्लस प्लस क्या कर रहा है, पॉइंटर को नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जा रहा है, और वहां से फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टार pb के थ्रू वो वैल्यू उठा रहे हैं। तो स्टार का वेरी सिंपल मीनिंग, स्टार मीन्स वैल्यू एड, तो वैल्यू एड, अभी p की वैल्यू कितनी हो गई 102 हो गई, यहाँ पे 102 हो गई, ये आप लूप घूम के अंदर आए, फिर सम की वैल्यू 1 प्लस वैल्यू एट 102, तो वैल्यू एट 102 कितनी अभी हमारी 2 है, सो वो 2 आ गया अभी, सो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर से प्लस, फिर यहाँ पे आए p प्लस प्लस, अब कितना हो जाएगा ये 104 हो जाएगा। नाउ वेरी it must be very clear to you that always you are taking the reference of address in terms of the integer values, but I told you that whatever the addresses are there, they are always in a hexadecimal number, यहाँ पे 100 102 104 ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, whatever the addresses are there, they are all are available into the hexadecimal format, तो hexadecimal में ही उसका इंक्रीमेंटेशन होगा। ओके, और हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारे समझ में नहीं आती है, तो फिर 104 आ गया अभी आपका, फिर से यहाँ पे घूम के गया, तो सम की वैल्यू 3 प्लस वैल्यू एट 104, तो वैल्यू एट 104 देखो कौन सी है 3 है, इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, नाउ दिस बिकम्स 6। ओके, सो इट विल गो ऑन, और जब आपका ये 10 का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ सीरीज मिलेगा। रन करते हैं, इंटीजर, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं किया था ऊपर में, तो एंटर द 10 वैल्यूज, तो वैल्यूज 10 करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसका सम पता है कि 55 आता है करके। ओके, सम ऑफ सीरीज इज 55, तो ये क्या होते गया, यहाँ पे आया वैल्यू एट 100 कितना है आपका 1 है, वो सम में स्टोर हो गया, फिर ये p इंक्रीमेंट हो गया तो 102, फिर से घूम के आया तो वैल्यू एट 102 2 है, फिर ये 104 हो गया, फिर से आया तो वैल्यू एट 104 3 हो गया, it will go on like this. So suppose you want to be a best programmer, you always have to trace your program. बोरिंग तो रहेगा थोड़ा सा,
लेकिन अगर आप बोर हो के जाओगे तो फिर आपका फ्यूचर इज नॉट अ ब्राइट। तो जब भी, क्योंकि प्रोग्रामर वही बन सकता है जो क्या करेगा, आउटपुट को लेके ट्रेसिंग करेगा। जब आप ट्रेसिंग करोगे तभी आपका प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पक्का होते जाएगा। So it is the need that you must have to trace your input and outputs. Okay, so this is the program. In the same way, you can implement it using a class and object. अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, क्लास सैंपल बनाया। इसमें हमको इंटीजर एरे लग रहा था, सम लग रहा था, और एक एल नहीं लग रहा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सम ऑफ सीरीज। अब आप ऐसे कोई भी फंक्शन बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ओवर द इंटीजर एरे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंटर्स। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ सीरीज कर रहा हूँ यूजिंग द पॉइंटर। सो वाइड सैंपल सम ऑफ सीरीज, अभी मैंने क्लास के बाहर लिखा, वही वहाँ का जो लॉजिक था, एंटर 10 वैल्यूज, तो फॉर का लूप लगा के 10 वैल्यूज रीड कर ली। फिर सम इक्वल टू 0 किया, फिर इंटीजर स्टार पी किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंटीजर एरे यहाँ पे है, और अभी हम ये इंटीजर एरो को पब्लिक में है, इसीलिए हम इसको क्या कर सक रहे हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये इसका पॉइंटर यहाँ पे बनाया और फिर उसमें एड्रेस असाइन किया। वो वाले प्रोग्राम में डायरेक्टली कहाँ पे था, डायरेक्टली मेन में ही था। ओके, तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया, फंक्शन के अंदर पॉइंटर बनाया, और फिर वही जो लॉजिक वहाँ पे था 10 तक चलेंगे, और 10 तक क्या करेंगे, सम में स्टार पी की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो 100 की जगह वैल्यू 1, फिर 102 की जगह वैल्यू 2, फिर 104 की जगह वैल्यू 3, फिर 108 की जगह वैल्यू 4, 10 कितना आएगा, फिर 110 की जगह वैल्यू 5। सो इट विल गो ऑन एंड वंस योर कंडीशन बिकम फॉल्स। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे लूप नहीं रखा होता और ये घूमते रहता था तो ये तो कहाँ तक जाता था। ओके, सो यू हैव टू स्टॉप इट समवेयर। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो ये तो आखिरी का ही नंबर उसमें सम करेगा 0 और आखिरी का नंबर 10, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो। ओके, तो इन दिस वे, और ये हो गया हमारा सम ऑफ सीरीज। फिर आपने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और S1 डॉट सम ऑफ सीरीज किया। तो सम ऑफ सीरीज में हमने पहले वैल्यूज भी रीड कर ली, प्रोसेसिंग भी कर लिया और आउटपुट भी डिस्प्ले कर दिया। इसलिए ना गेट डेटा, नहीं तो यहाँ पे गेट डेटा बनाना पड़ता था, फिर गेट डेटा में इतना पार्ट आता था, फिर वहाँ पे सम ऑफ सीरीज में फिर इतना पार्ट आता था, और फिर वहाँ पे आपका शो डेटा में एक स्टेटमेंट आता था। तो अभी हमने क्या किया, एक ही फंक्शन बनाया और एक ही फंक्शन के अंदर तीनों चीजें डाल दी, डेटा रीड भी किया, डेटा को प्रोसेस भी किया और डेटा को डिस्प्ले भी कर दिया। यू कैन टेक अ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ द सेम आउटपुट, यहाँ पे जो दिख रहा है वही आउटपुट आएगा उसका, क्योंकि हमने वही बनाया, दूसरा कुछ नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 और कभी भी आउटपुट ट्रेस करो ना तो पहले अपने को जिसका रिजल्ट पता है उसी का करो। है तो हम लोगों का आदत है कुछ भी वैल्यू डालो, हाँ आउटपुट आ गया, लेकिन वो करेक्ट है कि नहीं वी डोंट नो। सो दैट इज अ 55। सपोज यू वांट टू रन इट अगेन, नाउ यू कैन गो फॉर द अनदर वैल्यूज। ओके 550, क्योंकि पहले 55 आया, अभी उसमें 0 लग गया तो 550 आया। तो इन दिस वे यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉर एनी पॉइंटर। सिर्फ हमें ध्यान में रखना है ये स्टार पी और ये पी प्लस प्लस। स्टार पी माना वैल्यू उसमें ऐड करते जा रहे हो, और पी प्लस प्लस माना आपका एड्रेस को क्या कर रहे हो, आगे आगे लेके जा रहे हो। सो दिस इज द पॉइंटर फॉर द एरे। अब पॉइंटर फॉर द इंटीजर एरे। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आपको अगर मैक्स नंबर पता करना है या फिर सॉर्टिंग करना है, बस उसमें कुछ भी नहीं, आपको स्टार पी बस यूज करना है और पी प्लस प्लस लगाना है। अगर आपको कोई नंबर भी सर्च करना है तो आपका जो भी नंबर सर्च करना है एन, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, सिर्फ यही लूप चलेगा। सिर्फ वहां पे क्या होगा, इफ आपका क्या रहेगा, जो नंबर आपको सर्च करना है, इफ एन इज इक्वल टू क्या है आपका, किसके साथ चेक करोगे, स्टार पी के साथ चेक करोगे। अगर आपको नंबर मिल गया तो आप सिंपली क्या करोगे, ब्रेक करोगे, बाहर आ जाओगे, या फिर फ्लैग सेट करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, फ्लैग की वैल्यू लोगे ये, क्योंकि मिल गया तो फ्लैग को सेट करना पड़ेगा ना, सिग्नल तो देना पड़ेगा, हाँ भाई मिल गया करके, और ब्रेक कर दोगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार मिल गया। अगर 100 नंबर है और 100 में अगर आपको ढूंढना है, पहली बार मिला तो मिल गया, और आगे होगा तो उसको ढूंढ के क्या करना है हमको। जैसे अगर कोई तो भी मेडिसिन है, मेडिसिन में हमको पैरासीटामॉल चेक करना है, तो 5वें नंबर पे मिल गया पैरासीटामॉल,
तो 10वें नंबर पे भी होगा, 15वें में भी होगा, 50 में भी होगा। तो उससे क्या करना है हमको, 5वें नंबर पे मिलेगा तो जाके देखेंगे कि भाई 5वें नंबर के खाने में वो है कि नहीं अवेलेबल। ओके, तो और नहीं होगा तो फिर हम उसको प्रोग्रामिंग को और चेंज करेंगे कि भाई और कहाँ पे मिल रहा है क्या करके। ओके, सो दिस इज द वे टू मेक अ यूज ऑफ द पॉइंटर। और यहाँ पे नहीं मिला तो एल्स में जाके p प्लस प्लस करेंगे। एल्स में जाके क्या करेंगे, p प्लस प्लस करेंगे। सिंपल, इतना सिंपल लॉजिक है इसका। ये किसका है, टू फाइंड द मैक्स नंबर, सॉरी टू सर्च एलिमेंट इन द एरे। इसी तरह से आप मैक्स नंबर भी पता कर सकते हो, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे वो भी पता कर सकते हो। तो लॉजिक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ इन द सेम वे यू कैन गो फॉर द स्ट्रिंग, पॉइंटर टू स्ट्रिंग। तो जैसे इंटीजर एरे बनाया, बस सेम वैसे कैरेक्टर एरे बनाया। नाउ इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कितने एलिमेंट कितने कैरेक्टर्स है उसमें, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे वहां पे इंटीजर लिया, कंपैरिजन करो, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरिजन करो। तो यहाँ पे इंटीजर ये लिया और ये सम लिया, वहां पे हमने कैरेक्टर एरे लेंगे और लेंथ निकालने के लिए लेंगे। तो ये कैरेक्टर एरे और यहाँ पे लेंगे इंटीजर एल, इंटीजर एल। ओके, लेंथ निकालने के लिए, और एक कैरेक्टर वही है जैसे ऊपर में किया, एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड कर लिया, फिर सम की वैल्यू 0 की थी तो अभी एल की वैल्यू 0 की, फिर ये कैरेक्टर स्टार पी, वहां पे भी था वैसे पी इज इक्वल टू एम्परसेंड एसटीआर 0, वहां पे क्या था, ये कैरेक्टर स्टार पी था, पी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए ऑफ 0 था। अब यहाँ पे क्या है, एस टी आर ऑफ 0 है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर एरे है। अब वहां पे कैसा, इंटीजर एरे में पता है कि भाई 10 एलिमेंट है तो 10 तक लूप घुमाना है, लेकिन स्ट्रिंग में आप लूप कहाँ तक घुमाओगे, जब तक कि आपके स्ट्रिंग का बैकस्लैश 0 नहीं मिलता। तो उस तरह का लॉजिक इंटीजर एरे का हमेशा लॉजिक रहेगा, फॉर के लूप में आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 बार चेक करना है। और स्ट्रिंग में आपको कब तक चेक करना है, जब तक कि बैकस्लैश 0 नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम करोगे तो उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली यही लॉजिक रहेगा, वाइल स्टार पी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। ठीक है, नहीं मिला तो अंदर आके आपने क्या किया, जो एल की वैल्यू 0 थी, अभी सपोज स्ट्रिंग का नाम होगा कोई तो भी शिव शक्ति होगा। ओके, तो एस क्या है, एस इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर ये पी प्लस प्लस, माना अगर आपको उधर में लिख के बताना है तो अब ये उधर में लिखने के लिए, माना ऊपर में लिखने के लिए पहले मैं प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ उधर। यहाँ पे जैसे थे हम कैरेक्टर एरे में, तो यहाँ पे एस, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, एस, एच, आई, बी, एस, एच, ए, के, टी, आई। ओके, और यहाँ पे उसका एड्रेस तो पी एस, तो पी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 101। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर इंक्रीमेंटेड बाय वन बाइट ओनली, तो ये चलते जाएगा। लाइक दिस। अभी हम लोग कहाँ पे थे, स्टार पी एस प्लस प्लस कर रहे थे, तो पी एस पे वैल्यू 100 पे कौन सी वैल्यू है, क्योंकि हमने ये लिख लिया पी एस इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, एस टी आर कर देता हूँ, आपको माना उस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका लॉजिक। ओके, तो हमने क्या कर दिया, पी एस में अभी बेस एड्रेस डाल दिया 100। तो जब आपका स्टार एस टी आर आएगा वहां पे, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपका पी एस इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 101 पे जाएगा, तो 101 पे स्टार एस टी आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपका पी एस प्लस प्लस हो जाएगा तो 102 हो जाएगा। 102 पे स्टार एस टी आर प्लस प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये स्टार पी एस आएगा, स्टार पी एस आएगा। तो स्टार पी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब 100 आएगा पीएस में तो एस को रिप्रेजेंट करेगा, जब 101 आएगा तो एच को रिप्रेजेंट करेगा, जब पीएस का एड्रेस 102 आएगा तो स्टार पीएस आई को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल गो ऑन लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये वही हो रहा है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्या रीड कर ली, सपोज
बस ट्रेसिंग करके देखो आप, SHIVSH, मैंने दूर दूर इसलिए लिखा कि थोड़ा समझ में आना चाहिए इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला क्या आ गया, किसका एड्रेस आ गया, यहाँ पे एस का एड्रेस आ गया। ओके, सो वाइल स्टार पी, तो स्टार पी में पहले क्या है, एस आया, एस इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन ट्रू आई तो अंदर आया, एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू हो गई, जो 100 था वो कितना हो गया अभी, 101 हो गया। यहाँ से आप फिर से यहाँ पे गए, तो वैल्यू एट 101 क्या है आपका, एच है। इसके बाद क्या आया, एच आया, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये कितना हो गया आपका, 102 हो गया। फिर से यहाँ पे आया, वैल्यू एट 102 कितनी है, वो है आई। फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आए, ये कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर आप यहाँ पे आए, पी एस की वैल्यू कितनी हो गई, 103 हो गई। फिर यहाँ पे गए, वैल्यू एट 103, हमें तो देखना पड़ेगा लेकिन कंपाइलर को पता है कि वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस कौन सा है, तो वी। तो ये ऐसे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, और जब ये आपका ऐसे आते आते SHIV SHT T आई आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, \0। तो जैसे \0 आएगा आपका, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, \0 इज नॉट इक्वल टू \0, कंडीशन फॉल्स तो बाहर आए, और एल का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 4 5 6 7 8, आपका 8 आया वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू था। और ये आपका कुछ तो भी आएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो स्टार पे में \0 स्टार टी की वैल्यू कितनी मिली, \0, कोई तो भी लोकेशन, यहाँ पे देखो कौन सा लोकेशन है, तो 110। ऐसा पहले लिखो, फिर ट्रेसिंग करो, तब जाके वो कहीं पे दिमाग में बैठेगा। तो ये \0, तो कौन सा था वो, 110। जब p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 110, तो वैल्यू एट 110 इज \0, सो \0 इज नॉट इक्वल टू \0, दे आर इक्वल, एंड यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट इक्वल टू \0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो तो बाहर आ गए, तो लास्ट अपडेटेड l की वैल्यू कितनी है, 8 है। सो दैट्स व्हाई योर मैसेज इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 8। रन करो, डालो शिव शक्ति, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 आया, ज़्यादा हो गई, 4 और 6 10 बराबर है, तो ये और बढ़ा दो इसको 9 और इसको 10। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम, वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो। तो बस ये इतना लॉजिक है, स्ट्रिंग रीड किया, फिर आपको ये पॉइंटर आप ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, सिर्फ इतना लॉजिक है लेंथ फाइंड आउट करने का, और इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग का ऑपरेशन कर सकते हो। अब अगर ये आपको समझ में आऊंगा कि p प्लस प्लस क्या कर रहा है और ये स्टार p क्या कर रहा है, स्टार p एक एक कैरेक्टर को खींच के ला रहा है और p प्लस प्लस उस पर लेके जा रहा है। स्टार मीन्स वैल्यू एड, और ये p प्लस प्लस मीन्स वो एड्रेस एक एक करके उसमें आता जा रहा है, तो वैल्यू एड दैट एड्रेस, वो कैरेक्टर वहाँ पे रिट्राइव होते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लूप समझ में आया, तो ऐसा कोई भी किसी के लिए जितने भी हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस है, दैट ऑल यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग दिस लूप्स और यूजिंग द डिफरेंट लॉजिक्स। तो फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। फिर मैंने दोनों का कॉम्बो बनाया, यानी उसमें इंटीजर एरे का भी बनाया और स्ट्रिंग का भी बनाया। तो यहाँ पे देखो, ये पहले इंटीजर एरे हो गई, फिर इंटीजर एरे के लिए आपको जैसे ऊपर में प्रोग्राम में सम लग रहा था, और एल तो हमारा दूसरे प्रोग्राम में लग रहा था। फिर STR, दैट इज अ कैरेक्टर एरे, ये इंटीजर एरे, ठीक है। ये कौन सा है, इंटीजर एरे, इंटीजर एरे की सम करना है हमको, और कैरेक्टर एरे की हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। फिर मैंने दो फंक्शन बनाए, एक सम ऑफ सीरीज और एक slen। फिर मैंने सम ऑफ सीरीज में क्या किया, इंटीजर एरे का पूरा लॉजिक यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। वही है कि पहले एरे को रीड करो, फिर प्रोसेस करो, और फिर डेटा को डिस्प्ले करो। फिर मैंने slen में अपना स्ट्रिंग वाला लॉजिक लगाया। यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को पहले रीड किया, फिर मैंने स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का लॉजिक लगाया और डिस्प्ले किया, और फिर मेन में आके मैंने सैम्पल s1 किया, s1 डॉट सम ऑफ सीरीज, s1 डॉट लेंथ। अब इसी प्रोग्राम को हम स्विच के प्रोग्राम के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि भाई जितने भी फंक्शंस है उसको क्या करो, एक एक केस में डाल दो, और उस फंक्शन को कॉल करो, तो पर्टिकुलरली वो वहाँ पे चला जाएगा। सम यूज करके भी हम हर केस में अलग अलग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन देखोगे तो भी वही आएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग टास्क लेके उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा।
अगर आपको ट्रेसिंग समझ में आया, माना ये पूरा ट्रेसिंग ऐसे, हम तो चौथे अक्षर पे ही थक जाएंगे, लेकिन थकना नहीं है, क्योंकि जितना आप करोगे तो फिर आपके माइंड को वो डिफाइन हो जाएगा, फिर अगले बार आपके माइंड को आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही खुद आपको करके देगा। लेकिन अभी मेहनत करोगे तभी वो आगे जाके काम करेगा। तो ये फिर से अभी आपको कुछ दूसरे नंबर लेना है, नहीं तो सर वही नंबर ले रहे हैं। Sum of series is 605. Enter the string. Length of string is 7. तो इस तरीके से आप कर सकते हो। Okay. So this is all about the pointers to array, pointers to integer array, and pointers to string. Okay. Next, hybrid inheritance. अब इसका प्रोग्राम हम देखेंगे, यहीं पे अवेलेबल होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर छोटा वाला प्रोग्राम बना के बताऊंगा मैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे दो टाइप के हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल में क्या होता है कि एक से दो निकलते हैं। यहाँ पे कैसे है कि लाइक सिंपली यू कैन डिफाइन द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि इसमें मल्टी लेवल मल्टीपल भी आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिर कभी कभी इसमें क्या होता है कि हायरार्चिकल और मल्टीपल भी आ जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दो बताता हूँ। ये आपका ये ए आ गया यहाँ पे सपोज, फिर आपका यहाँ पे बी आ गया, फिर आपका यहाँ पे सी आ गया, और फिर हमारा यहाँ पे डी आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें देखोगे तो आप ये मल्टी लेवल आपको दिखेगा। अब मैंने ये इसलिए इसको बीच में डाला क्योंकि ये दोनों से बन रहा है। तो ये ए बी डी मल्टी लेवल हो गया, और ये बी सी डी आपका मल्टीपल हो गया। तो ये मल्टी लेवल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल। अब मैं वो लाइन में खींचते बैठा, यू मस्ट कंसिडर इट। तो ये क्या हो गया, ए बी डी, ठीक है, ए से बी डिराइव हुआ, बी से टी डिराइव हुआ, और डी फिर से किससे बना, सी से भी बना हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एंड सेकंड कॉम्बिनेशन इज, जैसे कि मैंने बताया, हायरार्चिकल। तो हायरार्चिकल में क्या रहेगा, यहाँ पे ए, ओके, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, लाइक दिस। माना ए से अब ये हायरार्चिकल हो गया। इतना पार्ट कौन सा है, हायरार्चिकल है। ये सिंगल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टी लेवल भी नहीं है। दिस इज अ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इतना पार्ट ए बी सी, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, and this is going to represent your multiple inheritance, multiple base classes. So that's why this is your multiple inheritance. Okay, so these are the two combos are there of a hybrid inheritance. अब यहाँ पे देखोगे तो ये multi level ABD multi level, BCD multiple. So this is the combination of multi level and multiple, but this is the combination of hierarchical and multiple inheritance. So we cannot refinedly say that hybrid inheritance is a combination of hierarchical and multiple inheritance. You can say that it is a combination of inheritance. Okay, it is a combination of different types of inheritances, that is called as a hybrid inheritance. Okay, now you tell me whether you have to go for this one or this one. Now what happened here, the data members or member functions of A will get derived to B, फिर इसके कुछ इसके पास है और इसने खुद के भी कुछ बनाए, तो वो भी किसको अवेलेबल हो गए, डी को अवेलेबल हो। माना ऐसा अज्यूम करते हैं कि ए के साथ क्या है, स्मॉल ए है, ठीक, और बी के साथ क्या है, स्मॉल बी है, सी के साथ क्या है, स्मॉल सी है। तो अभी इसको क्या क्या अवेलेबल हो गया, यहाँ पे ए बी अवेलेबल हो गया, क्योंकि ए से कौन बना, बी बना। तो बी के पास खुद का भी बी है, और ऊपर से उसके पापा से उसको ए मिल गया, तो बी के पास अभी ए बी हो गया। सी के पास खुद का सी है, अब डी के पास खुद का डी भी है, और उसको पापा से क्या मिले, ए बी भी मिला, और इधर से सी भी मिला।
तो यहाँ पे अगर आप क्लास ए बनाओगे, क्लास ए में आप जो भी डेटा मेंबर फंक्शन डालोगे, एंड फ्रॉम दैट क्लास ए सपोज यू आर क्रिएटिंग क्लास बी, तो बी को ए के पास से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए, और बी ने खुद का बनाया बी। अब जब आप सी बनाओगे तो सी के पास तो किसी का कोई है ही नहीं, वो खुद ही बेस क्लास है, तो सी ने खुद का सी बनाया। लेकिन जब अभी आप डी बनाओगे किससे, बी और सी से, जब आप डी बनाओगे बी और सी से, तो बी के ए बी, सी का सी, ये सभी कहाँ पे आ जाएंगे, डी के पास आ जाएगा, और डी ने खुद का भी क्या बनाया, डी बनाया। तो अभी डी के पास कितना है, ए का ए है, बी का बी भी है, सी का सी भी है, और खुद का डी है। बट हियर देयर इज अ बॉदरेशन, यहाँ पे ए, बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे इसने खुद का बनाया डी। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस केस। अब यहाँ से ए से यहाँ पे भी ए गया, यहाँ से भी ऊपर से सी के लिए ए से ए आया। अब जहाँ पे ये डी से डी इसने खुद का बनाया, लेकिन ऊपर से इसको क्या मिल रहा है, बी ए भी मिल रहा है और ए सी ए भी मिल रहा है। देयर इज अ डबल कॉपी ऑफ दिस ए, and that time compiler will get confused whether he have to access this A from B class or this A from C class. उसको confusion हो रहा है। So to ignore this confusion, to ignore this ambiguity, here we are going to make a use of virtual inheritance. You can see. Now, what happened with this virtual inheritance? What happened with this virtual inheritance? वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या करता है, कंपाइलर को बताता है, यानी कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये दोनों क्लासेस कहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं, एक सुपर क्लास से हो रहे हैं। तो इस सुपर क्लास की एक ही कॉपी नीचे जाएगी, इस सुपर क्लास की एक ही कॉपी एक तो बी के पास जाएगी या फिर सी के पास जाएगी, या फिर बी या सी से एक ही कॉपी सुपर क्लास की डी को जाएगी। तो ये हमारा सुपर क्लास, बेस क्लास से दो डिवाइड हो गए, तो ए से बी कैसे होगा, वर्चुअली होगा, सी भी ए से कैसे होगा, वर्चुअली होगा। और जब ये दोनों वर्चुअली हो जाएंगे तो इसमें से सुपर क्लास की एक ही कॉपी, सुपर क्लास की एक ही कॉपी क्या होगी, इसके पास आएगी। तो ये डी बी, डी खुद का, बी सी और ए, तो ये क्या हो जाएगी, एक ही कॉपी आएगी when we deriving or creating class B and class C from class A virtually. ओके, तो इसका सिंटैक्स कैसे बनेगा मैं वो लिख के बताता हूँ। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम तो लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक ये क्लास ए हो गया आपका। फिर आपका क्लास बी आप क्रिएट कर रहे हो कौन से क्लास से, ए क्लास से, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल पब्लिक ए। फिर हम क्लास सी बनाएंगे, उसके लिए भी लिखेंगे वर्चुअल पब्लिक, और फिर हम बनाएंगे क्लास डी। क्लास डी कैसे होगा, पब्लिकली होगा क्लास बी से, और फिर पब्लिकली होगा क्लास सी से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हेन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ वर्चुअल इनहेरिटेंस। और ये वाला तो आपका सिंपल ही है, पूरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो सिंटैक्स टू इम्प्लीमेंट अबाउट हो गया, हम क्लास ए, फिर क्लास भी आपका पब्लिकली हुआ ए से, क्लास सी हुआ आपका ऑटोमेटिकली क्लास सी क्योंकि पेरेंट क्लास है, और क्लास डी हुआ आपका पब्लिकली बी से और सी से। तो दिस इज द डायग्राम फॉर उसके लिए ये वाला। okay. Any problem in this hybrid inheritance? I don't know who raised a query regarding this.
So this is about the hybrid inheritance. So two combos are there. This is the first combo. This is the first type of hybrid inheritance, and this is the second type of hybrid inheritance. Suppose you want to implement a program expecting from me, so you can tell me. I will show the implementation of this program. सर ए में अगर हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा तो वैसे एक प्रोग्राम बना के दिखाइए ना। तुमने बना के देखा था ना शायद, क्या हुआ तो फिर? हाँ सर, वो काम नहीं किया, फिर मैंने उसमें एक क्लास ए में गेट डेटा फंक्शन बना के किया था। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप क्या करो कि कोई तो भी क्लास बी या क्लास सी में से कोई तो भी एक क्लास के थ्रू आप ये करो। सर वो किया था मैंने, फिर भी वो काम नहीं किया। बराबर है, वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बी भी है ना यहाँ पे और ये सी भी है। ओके, वो विल ट्राई इट, अदरवाइज मुझे फिर बाद में करके देखना पड़ेगा उसको। अभी तो मैं लिख के देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। तो यस सर। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे उसको बाद में स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस इज योर क्लास ए, इंटीजर ए, पब्लिक। व्हाट यू वांट, जैसे हमारा एक कंसेप्ट है पासिंग द पैरामीटर्स फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर टू द बेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। माना क्लास डी के थ्रू हमें क्या करना है, सी, बी और ए के कंस्ट्रक्टर को हमें क्या करना है, वैल्यूज पास करना है। सो फॉर दैट वी आर ट्राइंग पे मैं मैसेज भी डाल देता हूँ, वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। ये पहले इसमें क्या किया कि क्लास ए का हमने एक डेटा मेंबर लिया ए, कंस्ट्रक्टर किया ए, और आपको तो पता है कि ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें एक्स की वैल्यू हम किस में सेंड कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं। ये अब तक हमने कंस्ट्रक्टर पे नहीं किया, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे शो डेटा अवॉइड करना था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें मैसेज को डिस्प्ले कर दिया, तो शॉर्टन द प्रोग्राम। अब ये बी किया, क्योंकि क्लास बी किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो क्लास बी में हमने क्या किया, दो वैल्यूज लिए। एक एक्स किसके लिए चला जाएगा, कैपिटल ए के लिए चला जाएगा, और फिर और ये जो y है ये किसके लिए बचेगा, b के लिए बचेगा। ओके, और यहाँ पे c के लिए फिर मैं सी के लिए सी को करेंगे, करके देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इनहेरिट हो रहा है तो ये सिंटैक्स थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो दिस इज योर सी।